آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے والے ہیں جو بیک وقت بہت مشہور بھی ہے اور بہت متنازعہ بھی۔ بالکل، رابرٹ گرین کی طاقت کے 48 قوانین۔ جی وہی، ایک ایسی کتاب جسے کچھ لوگ تو ذہانت کا شاہکار مانتے ہیں اور کچھ اسے شیطان کا منشور کہتے ہیں۔ جیلوں میں یہ بہت مقبول ہے اور ساتھ ہی بڑے بڑے کارپوریٹ ایگزیکٹوز کی میزوں پر بھی نظر آتی ہے۔ یہی تو عجیب بات ہے۔ تو آج ہم اسی کتاب کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس خود مصنف کی فراہم کردہ تلخیص ہے۔ کتاب کا ایک سب سے متنازع قانون ہے، قانون نمبر 21۔ شکار کو پکڑنے کے لیے خود شکار بن جاؤ، اپنے ہدف سے زیادہ بے وقوف نظر آؤ۔ جی سچ کہوں تو یہ پڑھ کر ہی لگتا ہے کہ یہ کسی کو دھوکہ دینے کی ترکیب ہے۔ جارڈن پیٹرسن کے ساتھ اپنے انٹرویو میں رابرٹ گرین اس پر بات کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہی اس کتاب کا کہنے کے مرکزی نقطہ ہے۔ گرین کہتے ہیں کہ میرا مقصد لوگوں کو غیر اخلاقی بنانا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ ان کا مقصد اس حقیقت کو بے نقاب کرنا ہے کہ دنیا پہلے ہی ان اصولوں پر چل رہی ہے۔ ان کے مطابق لوئی 14 کا شاہی دربار اور آج کا جدید دفتر بنیادی انسانی رویوں کے لحاظ سے زیادہ مختلف نہیں۔ اچھا، یہ کہ ہم سب کے اندر حسد، لالچ اور طاقت کی خواہش موجود ہے، چاہے ہم اسے مانیں یا نہ مانیں۔ اور گرین کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ اس حقیقت سے آنکھیں چرائیں گے تو آپ ہمیشہ کسی نہ کسی کا شکار بنتے رہیں گے۔ یہی ان کی بنیادی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب دفاع کے لیے ہے، یہ آپ کو برسوں کی اس جذباتی اذیت سے بچانے کے لیے ہے جو تب ہوتی ہے جب کوئی آپ کو دھوکہ دیتا ہے یا آپ کی سادگی کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے خود کو مضبوط بنانے کے لیے؟ جی، جب وہ نیشے کی طاقت کے خواہش کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف دوسروں پر غلبہ پانا نہیں ہوتا۔ نیچے کے لیے اس کا مطلب خود پر قابو پانا بھی تھا، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا۔ گرین اسی خیال کو سماجی میدان میں لاگو کرتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے، لیکن کیا تمام 48 قوانین اتنے ہی تاریک ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، اور وہ خود یہ واضح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 2/3 قانون تو جوڑ توڑ کے بارے میں ہیں ہی نہیں، بلکہ عقل سلیم پر مبنی ہے۔ مثلاً جیسے جرات کے ساتھ عمل میں داخل ہوں یا اپنے کاموں سے اپنی پہچان بنائیں، الفاظ سے نہیں۔ یہ تو وہ اصول ہے جو کوئی بھی دانشمند شخص اپنائے گا۔ تنازع تو ان قانونوں پر ہوتا ہے جو انسانی فطرت کے غیر آرام دہ پہلوؤں کو براہ راست مخاطب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلے ان غیر آرامدہ قانونوں میں سے پہلے قانون پر آتے ہیں، کبھی اپنے آقا سے زیادہ نمایاں نہ ہو۔ یہ تو بہت عجیب لگتا ہے۔ کیا ہمیں اپنی صلاحیتوں کو چھپانا چاہیے؟ اس کے لیے لوئی 14 اور اس کے وزیر خزانہ نکولس فوکے کی کہانی بہترین مثال ہے۔ اچھا، یہ کیا کہانی ہے؟ یہ ایک شاندار اور کہلے کے المناک کہانی ہے۔ فوکے ایک بہت ذہین اور باصلاحیت وزیر تھا۔ اس نے بادشاہ کے اعزاز میں ایک ایسی شاندار پارٹی دی جو تاریخ کی سب سے بڑی پارٹیوں میں سے ایک تھی۔ یعنی وہ بادشاہ کو خوش کرنا چاہتا تھا؟ ارادہ تو یہی تھا، لیکن اس کا محل، اس کا کھانا، اس کا انداز، سب کچھ بادشاہ سے بہتر تھا۔ نتیجہ الٹا نکلا۔ لوئی 14 کو لگا کہ فوکے نہ صرف اس سے زیادہ امیر ہے بلکہ اسے زیادہ مقبول بھی ہے۔ اوہ، تو یہ انا کا مسئلہ بن گیا۔ بالکل، اس نے فوکے پر کرپشن کا الزام لگایا اور اسے زندگی کے آخری 20 سال قید تنہائی میں ڈال دیا۔ صرف ایک پارٹی کی وجہ سے؟ یہ تو بہت شدید رد عمل ہے۔ یہ پارٹی کے بارے میں نہیں تھا، یہ طاقتور لوگوں کی عدم تحفظ کی نفسیات کے بارے میں تھا۔ وہ چاہتے ہیں کہ سورج صرف ان پر چمکے۔ تو اس کا کوئی مثبت پہلو بھی ہے؟ کوئی ایسا جس نے یہ اصول صحیح طریقے سے استعمال کیا ہو؟ جی بالکل، گیلیلیو کی مثال دیکھیں۔ جب اس نے مشتری کے چاند دریافت کیے تو اس نے انہیں میڈیچی ستارے کا نام دیا، اپنے سرپرست میڈیچی خاندان کے نام پر۔ اچھا، تو انہوں نے اپنی دریافت کو اپنے مالک کی شان بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ بالکل، اور بدلے میں اسے زندگی بھر کے لیے شاہی عہدہ اور تنخواہ ملی۔ اس نے اپنے آقا کو چمکایا اور خود بھی چمکا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ اپنے آقا کو ناراض نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے دوستوں پر تو بھروسہ کر ہی سکتے ہیں نا؟ یہاں بھی گرین ایک چونکا دینے والی بات کرتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ ان کا قانون نمبر 2 کہتا ہے، دوستوں پر بہت زیادہ بھروسہ نہ کریں، دشمنوں کو استعمال کرنا سیکھیں۔ یہ تو ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ تو دوستی کے تصور کے ہی خلاف ہے۔ یہ سمجھنا واقعی مشکل ہے، لیکن اس کے پیچھے گہری نفسیات ہے۔ ایک بائزنٹائنی شہنشاہ تھا، مائیکل سوام۔ جی؟ اس نے اپنے ایک دوست بسیلس کو غربت سے نکالا
उसे बेहतरीन तालीम दी और उसे अपना सबसे करीबी मशीर बना लिया। मतलब उस पर बहुत एहसान किया। बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे जैसे बासिलिस की ताकत बढ़ती गई, उसका एहसान मंदी का जज्बा ख़त्म होता गया। आखिरकार उसने खुद शहंशाह बनने के लिए माइकल को कत्ल करवा दिया। लेकिन क्यों? जिस शख्स ने उसे सब कुछ दिया उसी को मार दिया? क्योंकि किसी का एहसान एक बहुत बड़ा बोझ हो सकता है। लोग ये महसूस करना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी कामयाबी खुद हासिल की है, ना कि वो किसी की खैरात पर जिंदा हैं। ये बात तो है। जब आप किसी दोस्त को मुलाजमत पर रखते हैं तो हसद पैदा होता है। वो आपकी हर कमजोरी जानते हैं। वो आपसे इतने बेतकल्लुफ होते हैं कि आपको वो एहतराम नहीं देते। इसके बरक्स एक साबिक दुश्मन के पास खुद को साबित करने के लिए बहुत कुछ होता है। तो वो ज्यादा वफादार साबित हो सकता है? जी, हो सकता है, क्योंकि उस पर कोई एहसान का बोझ नहीं होता। ये बातें दुनिया के बारे में एक बहुत ही सर्द और हिसाब किताब वाली तस्वीर पेश करती हैं, और ये सिलसिला तासुर को संभालने के फन तक जाता है। कानून नंबर 3, अपने इरादे छुपाएं। यहाँ ऑटो वॉन बिस्मार्क की कहानी बहुत दिलचस्प है। अच्छा, बताइए। बिस्मार्क प्रूशिया को मुत्तहिद जर्मनी का रहनुमा बनाना चाहता था, और इसके लिए ऑस्ट्रिया के साथ जंग जरूरी थी। लेकिन उसने पार्लियामेंट में जंग के खिलाफ एक पुरजोश तकरीर की। कहा कि जंग एक बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन वो तो जंग चाहता था ना? जी, चाहता था। लेकिन उसकी इस ईमानदाराना तकरीर की वजह से बादशाह ने उसे काबीने में शामिल कर लिया, और वहां से उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने पत्ते खेले और आखिरकार वही जंग शुरू की जिसके वो बज़ाहिर खिलाफ था। तो उसने अपने असल इरादे को एक धोखे के पर्दे में छुपाया। लेकिन क्या ये सरासर धोखाधड़ी नहीं है? हिकमत अमली और झूठ में क्या फर्क रह जाता है? यही तो इस किताब का मरकजी इखलाकी सवाल है। ग्रीन के मुताबिक ताकत के खेल में मुकम्मल ईमानदारी एक कमजोरी है। अगर आप हर किसी को अपने मंसूबे बताते फिरेंगे तो वो आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे। यानी खामोशी बेहतर है? या फिर लोगों की तवज्जो भटकाने के लिए एक झूठा हदफ पेश करना बेहतर है। और इसी से जुड़ा है कानून नंबर 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। आज की दुनिया में जहां सब बोल रहे हैं, क्या ये मशवरा उल्टा नुकसानदेह नहीं? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। ग्रीन का मतलब हर वक्त चुप रहना नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक खामोशी है। स्ट्रेटेजिक खामोशी? इसका क्या मतलब है? इसके पीछे नफ्सियाती नुक्ता ये है कि इंसानी दिमाग खामोशी से घबराता है। जब आप खामोश होते हैं तो सामने वाला उस खला को पुर करने लगता है। वो बेचैन होकर बोलना शुरू कर देता है और नादानिस्ता तौर पर आपको वो सारी मालूमात दे देता है जो आपको दरकार होती हैं। अच्छा। लुई 14वां जब किसी दरखास्त पर सिर्फ ये कहता था, मैं देखूंगा, तो दरबारी हफ्तों तक खौफ और बेयकीनी में रहते थे। कम बोलने से आपके अल्फाज में वजन पैदा होता है और आप हकीकत से ज्यादा गहरे और ताकतवर नजर आते हैं। ये सब तासुर और साख की तरफ जाता है। कानून नंबर 5 कहता है, बहुत कुछ साख पर मुनहसर है, अपनी जान की तरह उसकी हिफाजत करें। और इसके लिए चीनी जर्नल जूगे लियांग की कहानी से बेहतर कोई मिसाल नहीं। जी, सोया हुआ ड्रैगन। ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन लगता है। बिल्कुल। तसव्वुर करें, जूगे लियांग के पास सिर्फ 100 सिपाही हैं और वो एक छोटे से शहर में फंसा हुआ है। सामने से दुश्मन जनरल सीमा यी 1.5 लाख की फौज लेकर आ रहा है। शिकस्त यकीनी है। लेकिन जूगे लियांग क्या करता है? वो शहर के दरवाजे खोलने का हुक्म देता है, कुछ बूढ़े सिपाहियों को झाड़ू देने पर लगा देता है और खुद शहर की दीवार पर चढ़कर सुकून से अपना साज बजाना शुरू कर देता है। ये तो पागलपन है। और इसका क्या नतीजा निकला? सीमा यी, जो जूगे लियांग की चालाकी और जहानत की शोहरत से वाकिफ था, अपनी फौज को रोक लेता है। वो सोचता है कि ये नामुमकिन है कि जूगे इतने सुकून से बैठा हो, जरूर अंदर कोई बहुत बड़ा जाल है। तो वो डर गया। वो डर कर अपनी पूरी फौज के साथ पीछे हट जाता है। जूगे लियांग ने अपनी साख को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और बगैर एक तीर चलाए एक बहुत बड़ी फौज को भगा दिया। वाह, ये साख की ताकत है। जी, ये आपके लिए वो जंगें लड़ती है जो आप हथियारों से नहीं लड़ सकते। ये कहानियां तो बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुसन्निफ खुद इन कवानीन पर अमल करता है? क्या ये सिर्फ थ्योरी है या वो इसे अपनी जिंदगी में भी लागू करता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और वो खुद इसका जवाब देता है। वो कानून नंबर 11 की मिसाल देता है, जो कि है लोगों को खुद पर इन्हिसार करना सिखाएं। जी, वो कहता है कि इसकी पूरी हिकमत अमली इसी कानून पर मबनी है।
उसने अपनी किताबों को इस कदर मुनफरिद अंदाज में लिखा है, तारीखी कहानियों, फलसफे और अमली मशवरों का इम्तिजाज, कि कोई और उन्हें नकल नहीं कर सकता। अच्छा, तो वो नाकाबिले तबादला बन गया है। बिल्कुल, कोई पब्लिशर उसे ये नहीं कह सकता कि हम आपकी जगह किसी और को रख लेंगे। इस नागुज़ीर होने ने उसे मुकम्मल तख्लीकी आज़ादी दी है। और वो एक और कानून का भी जिक्र करता है जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। कानून नंबर 28, जुर्रत के साथ अमल में दाखिल हों। जी, जब उसने ताकत के 48 कवानीन का मसवदा अपने पब्लिशर को दिया तो वो घबरा गए। उन्होंने कहा कि ये बहुत मुतनाज़ा है, बहुत खतरनाक है, इसे थोड़ा नरम करो। लेकिन ग्रीन ने ऐसा नहीं किया। नहीं, उसने एक जुर्रतमंदाना कदम उठाया। उसने कहा, इसे ऐसे ही कबूल करो या छोड़ दो। उसका मानना है कि अगर वो उस वक्त बुज़दिली दिखाता और समझौता कर लेता तो ये किताब कभी इतनी कामयाब ना होती। तो उसकी दिलेरी ही उसकी कामयाबी की वजह बनी। एक तरह से हाँ, ये दिलेरी की नफ्सियाती ताकत है। ये आपकी खामियों को छुपा लेती है और एतमाद का एक ऐसा तासुर देती है जो अक्सर मोहतात गुफ्तगू शुनीद से बेहतर नताइज लाता है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने उस किताब के मुतनाजा फलसफे को देखा, बॉसेस, दोस्तों और दुश्मनों से निपटने के अमली मगर परेशान कुन मशवरों पर नजर डाली। आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? बुनियादी पैगाम ये लगता है कि ताकत एक समाजी खेल है और आप ये कहकर इससे बाहर नहीं निकल सकते कि मैं नहीं खेलता। यानी आपको खेलना ही पड़ेगा। अगर आप उसूल नहीं जानते तो आप हमेशा उन लोगों के रहमो करम पर रहेंगे जो ये उसूल जानते हैं। ये किताब इंसानी फितरत के आईने की तरह है। यह हमें हमारी ख्वाहिशात, हमारे अदम तहफ़्फ़ुज़ और हमारे कौलो फेल के दरमियान का फ़र्क बताती है। तो ये हकीकत को कबूल करने के बारे में है? जी, उस हकीकत को कि दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी नजर आती है और लोग हमेशा वो नहीं होते जो वो जाहिर करते हैं। हमारे ज़राए इन कवानीन को कदीम चीन के दरबारों से लेकर जदीद सिलिकॉन वैली के दफातर तक इंसानी फितरत के लाजवाल पहलुओं के तौर पर पेश करते हैं। इससे एक आखिरी सवाल पैदा होता है जो हमारे सामईन के सोचने के लिए है। और वो क्या है? अगर ताकत की ये हरकियात हमारी फितरत में इतनी गहरी हैं, तो क्या इन कवानीन को शऊरी तौर पर सीखना और लागू करना दूसरों के साथ एक मज़मूम जोड़ तोड़ है, या ये महज एक ऐसी दुनिया में ज्यादा खुदागाह और मौसर बनना है जो पहले ही इन उसूलों पर चल रही है? हिकमत अमली कब जोड़ तोड़ बन जाती है और कब ये सिर्फ दानाई कहलाती है?